and marketing. कई मुद्दों पर बात रखी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। हम बात कर रहे थे क्लाइमेट कमिटमेंट की, भारत की अध्यक्षता G20 में। ऐसे में पूरे विश्व को हमने संदेश दिया लाइफ मिशन के द्वारा कि हम सभी एक कदम बढ़ाएं प्रकृति की ओर, पर्यावरण की ओर, क्योंकि दिस इज द हाई टाइम व्हेन वी हैव टू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स नेचर। ऐसे में क्लाइमेट कमिटमेंट के लिए एक बड़ा एलोकेशन कैसे देखते हैं आप? क्लाइमेट चेंज एक आज के टाइम में वी कैन से एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, और इस क्राइसिस को हमें दोनों साइड से देखना होगा, मिटिगेशन साइड से भी और अडेप्टेशन साइड से भी। यदि आप अडेप्टेशन साइड में देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर इज मोस्ट एक्सपोज्ड सेक्टर एंड मोस्ट अफेक्टेड आल्सो, तो इस बजट के अंदर जो बात कही गई है कि मोर देन 100 varieties we will bring of the crops, the different crops in that, which will be climate resilient. This is one. Similarly, this natural farming is also climate resilient. So these kind of steps, they will make our agriculture less prone to climate crisis. They will make farmers, means we can say climate resilient on that. This is the one step we can say which is a major step in this budget. Similarly, if we talk about the mitigation side, on the mitigation side, what could be the solution? Solution, we can say the renewable energy. In the renewable energy part, in this budget, these custom duties on rare earth materials, which are the inputs for this manufacturing of renewable energy equipments, they are necessary inputs in that. So all this customs duty on rare earth minerals, that brings to zero. So in that way, these imports, they will be easy, and then we will be cost competitive, because at present China is our major competitor. From there we are importing. So if we are removing these custom duties on that, so in the manufacturing of renewable energy equipments, we will be competitive in that. Similarly, you can say in this budget, of course it's not part of budget, in the budget also it's mentioned in that, there is one big sectors we can say, which generally we say hard to abate sectors. In the hard to abate sectors, first we bring this PAT schemes, perform, achieve and trade, so that we can produce and create incentives for energy conservations. And since last year, we have this gazette notification on creating carbon markets, and through those markets, these hard to abate sectors, they will be able to do these mitigation efforts with least cost in that. So these are the areas where this budget is talking about. Similarly, what we can say, because in India at present, coal is a major sector. At coal, we can say our central India is much more dependent on that. So we cannot, we can say that phase out immediately on that. We have to continue with that also, but this coal we have to use efficiently. So as for that purpose, in this budget, it was announced that we will this anti-peasant bill, they jointly will develop, we can say this ultra efficient thermal power plants in that, so that we have energy, but that is not so polluting. These are the steps which are taken both on the adaptation side as well as on the mitigation sides in this budget. Professor Kumar, in the long run, don't you think that the use of coal for energy, we need to go on the track of, because it's after all creating a lot of carbon footprints, and we, in the long run, we will have to get away from coal. Yes, means in the long run we have to. Means at this Glasgow, we committed that by 2070, yes, India will have net zero emissions. Net zero, yes. Okay, for that purpose, obviously we have to phase out this coal
using that. At present, if we say electricity generation, almost 3/4 of our electricity that comes from the fossil fuels. And we have huge capacity at present also in that. So overnight we can't afford to close down all that facility we have built on track that. for that 450 gigawatt of renewable energy We too. say that in terms of the capacity for the generation, at present we can say around 45% generation capacity is in the renewable sector. So over time we are developing that capacity, but given our energy needs, means we can say that before 2050 or 2060, you can't say goodbye to the coal. You have to continue to use coal because energy is also our requirement. We have to develop. We can't stop that. इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सुरेंद्र। बढ़ते हैं आगे। बजट 2024-2025 को लेकर केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के साथ बातचीत की हमारी संवाददाता कृति मिश्रा ने। आप देख रहे हैं संसद टीवी पर लगातार बजट पर खास पेशकश और हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान देश के फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मंत्री लल्लन सिंह जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। बहुत धन्यवाद सर, इसके पहले हम फिशरीज की बात करें, मैं खासकर बिहार पर बात करना चाहूंगी कि जिस तरह से एक स्पेशल असिस्टेंस, एक स्पेशल पैकेज की बात हुई है इस बार के बजट में, आप कितना उपयोगी इसको मानते हैं बिहार के लिए? देखिए, बिहार अपने संसाधनों के बल पर पिछले कई वर्षों में आप देखेंगे तो बिहार का ग्रोथ रेट डबल डिजिट में रहा है। लेकिन जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत बनाने का, विकसित देश बनाने का, वो जब तक पूर्वी राज्यों का विकास नहीं होगा, विकसित नहीं होंगे, तब तक संपूर्ण देश का विकास नहीं हो सकता। और बिहार और हम सभी लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, जिन्होंने पूर्वी राज्यों के विकास के लिए पूर्वोदय योजना चलाकर और बिहार के कई योजनाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सुदृढ़ किया जाए, पुलों का निर्माण हो, पर्यटन का विकास हो, सिंचाई, बिहार में एक सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ की, उस बाढ़ से निजात के लिए क्या की जाए। कोसी का इलाका सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित रहता है। बिहार में जो कोसी मेची लिंक योजना है, नदी जोड़ योजना है, उस पर पैसा देकर, इन सारे योजनाओं को देकर उन्होंने यह साबित किया है कि वो पूर्वी राज्यों के विकास के लिए संकल्पित हैं और जो देश को विकसित भारत बनाने का उनका संकल्प है उसको पूरा करने के लिए वो पूरी दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। यह संकेत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस बार के बजट से ये दिया है। सर, बिहार की अगर बात करूं तो किस तरह का रिएक्शन रहा इस स्पेशल पैकेज के बाद? देखिए, बिहार की तो मांग रही है, बिहार के लोग ये मांग करते रहे हैं कि या तो मुझे विशेष राज्य का दर्जा दें या फिर हमको विशेष पैकेज दें। और जो आज बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो घोषणाएं की है बिहार की योजनाओं के लिए और बिहार के विकास में योगदान के लिए जो केंद्र के सहयोग का उन्होंने जो घोषणा किया है, उससे आज बिहार में यह बात लोगों को ये लगने लगा कि अब केंद्र सरकार और बिहार एक विकसित प्रदेश बनकर रहेगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो पिछले 18 वर्षों से जो प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास को और ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी और बिहार आने वाले समय में एक विकसित प्रदेश के रूप में विकसित होगा। बिल्कुल सर, समूचे प्रदेशों का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। लेकिन अगर मैं आपके मंत्रालय की बात करूं और एलोकेशन की बात करूं तो तकरीबन 50% की वृद्धि हुई है। 54% एलोकेशन में जो कह सकते हैं कि उसको बढ़ाया गया है। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में एक इस मंत्रालय का भी गठन हुआ है। फिशरीज पहले एक डिपार्टमेंट ही था। तो आगे आप किस तरह से देखते हैं कि क्या प्रायोरिटीज है और क्या इम्प्लीमेंटेशन के आपके टारगेट्स हैं? देखिए, आज जो वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में जो श्रिम्प के ब्रूड स्टॉक्स के लिए जो घोषणाएं हुई हैं,
आपको यह हम बता दें कि वह आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। आप अगर मत्स्य पालन के उत्पादन को देखें तो 1950 और 51 से लेके 2014 तक जो मत्स्य का उत्पादन होता था वो लगभग 63 वर्षों में जितना हुआ 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार में उसका डबल हुआ और वो 60 लाख मेट्रिक टन से 1,21,000 मेट्रिक टन पर पहुंच गया उत्पादन। तो यह, और उसके अलावा हम आपको बता दें कि जो आज दुनिया में दूसरे स्थान पर मत्स्य पालन में हमारा देश है पूरी दुनिया में, तो मत्स्य उत्पादन जो है हमारा आज वर्ल्ड के 2nd रैंक पर हम पहुंचे हैं। और यह मोदी जी की जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है उसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन इसमें लाया और उसके कारण आज मत्स्य उत्पादन काफी बढ़ा है और लगभग 63,000 करोड़ रुपए का आजकल हम लोग आयात कर रहे हैं, यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। अब अगर जो आज की घोषणा है माननीय वित्त मंत्री जी का, यह जब पूरा होगा तो यह एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ से ऊपर तक जा सकता है आने वाले समय में, क्योंकि जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फीस उसमें श्रिम्प का सबसे ज्यादा योगदान है और श्रिम्प के स्पेसीज को डेवलप करने के लिए उसमें और गुणवत्ता के साथ उसको एक्सपोर्ट करने के लिए जो श्रिम्प का वैल्यू एडेड जिसको कहते हैं आप, तो वैल्यू ऐड करके उसको एक्सपोर्ट करने का मार्ग प्रशस्त होगा और यह विभाग भी उस पर काम कर रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में हम आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने में यह विभाग पूरे तौर पर सहमत रहे, उनके साथ समर्थन करेगा। बिल्कुल सर, बेहद अहम जिम्मेदारी है आपको मिली है। बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से और आपके जो भी फ्यूचर प्लान्स हों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू सनसेट टीवी। थैंक यू वेरी मच। विद कैमरा पर्सन डीके पांडे, आई एम कृति मिश्रा साइनिंग ऑफ फॉर सनसेट टीवी। बजट 2024-25 को लेकर एसोचैम के सलाहकार राहुल गर्ग से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू ने। आम बजट पेश हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं एसोचैम के एडवाइज़र राहुल गर्ग साहब। सर, सबसे पहले सनसेट टीवी पर बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर, अमृतकाल का ये बजट माना जाता है। एज ए एक्सपर्ट आप इस पूरे बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बजट अमृतकाल का बजट होने के साथ साथ एक ऐसी स्थिति में बजट बना है जो कि पिछले 6 बजटों से बड़ा डिफरेंट है। वो ऐसे कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दिस इज़ ए बजट ऑफ ए कोalition गवर्नमेंट, बट डिस्पाइट दैट इतना अच्छा लगा बजट सुन के कि जैसे पुराने 6 बजट एक्सलेंट थे उसी तरह ये भी बजट एक्सलेंट था in terms of its delivery both for tax matters and non-tax matters. सर, चूँकि लंबे समय से आप तमाम जो बिंदु हैं बजट के उस पर नज़र रख रहे हैं, आम लोगों के लिहाज से अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो आम लोगों के लिहाज से आप इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, 3 चीज़ें आम लोगों के लिहाज से बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो महंगाई, उसका बोझ ना उनके शरीर पे पड़े, उनके बजट पे ना पड़े। उसका महंगाई को कंटेन करने के लिए आपने देखा कि इन्फ्लेशन के दर एक रेंज में रखी गई है और ये भी रिकग्नाइज़ किया गया है कि कहीं फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उसको टैकल करने के लिए सेपरेट कुछ टारगेटेड तरीके से किया जाएगा। तो मैं कहूँगा इस बारे में बजट के सारे प्रावधान से, मॉनेटरी पॉलिसी के प्रावधान से और ऑपरेशंस के प्रावधान से आम लोगों के लिए महंगाई को कंटेन करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। वो बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से करने की पूरी कोशिश जाहिर है बजट से। दूसरी बात कहूँगा आम लोगों के लिए कि देश की अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ता आनी चाहिए और देश की अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ता यहाँ पर इतनी ज़्यादा एपरेंट है कि एक छोटा सा भी अर्थशास्त्री
अर्थशास्त्र का स्टूडेंट समझ सकता है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 5.1 था और हमने क्लोज किया 4.9 पे। कोविड के बाद रिजिलियंस ऑफ इकोनॉमी को देखते हुए, इंटरनेशनल मार्केट में जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए ये रिमार्केबल चीज़ थी, जिससे अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ होने की साफ साफ इंडिकेशन मिलता है। तीसरी चीज़, आम आदमी को लगता है कि मुझसे टैक्स कम से कम लिया जाए, और टैक्स के बारे में जो वित्त मंत्री ने कहा कि नए टैक्स रिजीम में, जो कि पहले ही अट्रैक्टिव था, उन्होंने बताया कि काफ़ी लोगों ने नया टैक्स रिजीम फॉलो किया है क्योंकि ये अट्रैक्टिव था। अब उस नए टैक्स रिजीम को फर्दर अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके स्लैब रेट में थोड़ा चेंज किया, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाई, पेंशन के बारे में चेंज किया, और कुल मिला के 17,500 रुपये का और बेनिफिट लोगों को जो उस स्लैब में है मिल सकेगा। तो आम आदमी के लिए महंगाई के हिसाब से, एक सुदृढ़ इकोनॉमी के पार्ट होने के हिसाब से और अपना टैक्स रेट कम होने के हिसाब से, आई वुड से इट गेट्स फुल मार्क्स। सर, इस बजट में ख़ास चीज़ ये भी देखी गई है कि युवाओं का खासा ध्यान रखा गया है। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा और जो 500 टॉप कंपनीज़ हैं उनमें उनको इंटर्नशिप दिलाया जाएगा और साथ में जो स्टाइपेंड है वो भी दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। जैसा आप समझ सकते हैं कि हम लोग भी जब कॉरपोरेट में काम करते रहे तो हमने ये देखा कि लोग बाग पढ़ के आते हैं लेकिन वो कॉरपोरेट में काम करने लायक नहीं होते। उनको कॉरपोरेट में काम करने के लिए काफ़ी फिटमेंट, एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है, सिर्फ कॉरपोरेट कल्चर को ही समझाने के लिए और समझने के लिए। ये 1 करोड़ लोग जो पढ़ लिख के अगर इंटर्नशिप करके कॉरपोरेट्स में ट्रेन हो जाएंगे तो मेरा ख्याल इसको जब हम कहते हैं रेडी स्टॉक हो जाएगा। ये लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसे तैयार होंगे कि कॉरपोरेट उनको तुरंत एब्जॉर्ब कर पाएगा और वो भी कॉन्फिडेंटली कॉरपोरेट में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, जो नेशन बिल्डिंग के लिए भी अच्छा है, उनकी पर्सनल लाइफ और लाइवलीहुड के लिए भी अच्छा है, और अनएम्प्लॉयमेंट तो इससे दूर हो गई होगा। सर, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विकसित भारत की बात करते रहे हैं और उनका सपना है कि 2047 तक ये राष्ट्र विकसित भारत की शक्ल में तब्दील हो सके। आपको लगता है कि ये बजट जो पेश किया गया है इसमें विकसित भारत की तस्वीर दिखती है? मेरे हिसाब से विकसित भारत की तस्वीर दिखती है, सारे बजटों में दिखी और इसमें भी दिखती है, और उसका साफ साफ इंडिकेशन इस बात से मिलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स रेट्स, स्टेबल पॉलिसीज़ और इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, उन सब चीज़ों को ऐसे समावेश किया गया है कि भारत की आत्मनिर्भरता दिन पर दिन बढ़ती रहे। आप ये देखिए कि फॉरेन कंपनीज़ का टैक्स रेट भी कम कर दिया 40% से 35%। उनके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी लगा था वो भी हटा दिया। उनको सर्टेनिटी देने के लिए ट्रांसफ़र प्राइसिंग में भी कुछ नए चेंज होने जा रहे हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करने के लिए उतनी ही कोशिश की जा रही है जितनी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और डिमांड को अट्रैक्ट करने के लिए और प्रून करने के लिए की जा रही है। तो मेरे ख्याल से विकसित भारत के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है, इंटेलेक्चुअल पावर, हेल्दी इंडिया एंड विद इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड यू, सब चीज़ों के लिए इसमें पूरी तरीके से प्रावधान है। मैं ये समझता हूँ कि अगर लोग बाग टैक्स सिंसियरिटी से देते रहें, सरकार के पास रेवेन्यू आता रहे, तो किसी बात की कमी नहीं है विकसित भारत बनने में। आखिरी सवाल, 10 में से कितना नंबर आप इस बजट को देंगे? 10 में से 11। That is my sincere coming from the heart, that I don't think not even a team, multiple teams you put together who may be the experts in the subject globally could come out with anything better than this. तो आपने देखा कि जिस तरीके से बजट पेश किया गया है, राहुल गर्ग साहब का साफ मानना है कि चाहे वो आम आदमी हो, मध्यम वर्ग हो या फिर कॉरपोरेट्स हों, उन सब का ख्याल इस बजट में रखा गया है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है और जो विज़न है विकसित भारत को लेकर के, उसकी भी साफ तस्वीर इस बजट में दिखाई देती है। कैमरामैन सुधांशु के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, संसद टीवी। एसोचैम से काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। भविष्य के लिए बहुत अच्छा बजट
ऐसा स्टेटमेंट एसोचैम से 10 में से 11 नंबर उन्होंने दिए हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हैं यामिनी अग्रवाल, डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, भारतीय विद्यापीठ से। बहुत स्वागत है मैम आपका। पहला रिएक्शन जो बजट पेश होने के बाद आता है क्या है? युवाओं के लिए काफ़ी कुछ किया गया है, मार्केट के लिए काफ़ी कुछ किया गया है, मार्केट ड्रिवन बजट है। क्या लगता है भविष्योन्मुखी बजट है और विजन 2047 को देखते हुए बनाया गया? जी देखिए, कैपिटलिज्म की तरफ बजट है। ज़्यादातर चीज़ें कोशिश की गई हैं कि मार्केट द्वारा संचालित हों और मार्केट ड्रिवन इकोनॉमिक सिस्टम्स रहें, जिसके तहत लेजर्स फेयर और इनविजिबल हैंड का जो एफिशिएंसी मॉडल है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। जितनी सारी मार्केट्स हैं उनको कोशिश की गई है कि उतना सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए या डेवलप किया जाए जो मार्केट सिस्टम्स के थ्रू हों। पर बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो एक पुअर और डिसएडवांटेज्ड व्यक्ति को प्रोवाइड करती हों, ख़ास तौर पे जहाँ पे इनकम इनइक्वालिटीज़ काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ख़ास तौर पे पावर्टी लाइन का या अनएम्प्लॉयमेंट का या महंगाई का, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। Yamini ji, the finance minister said that she used the term simplification many stage in the budget speech about the taxes, about the income tax, about GST collection and everything, GST tax related. What is your reading of the simplification of this budget? See, it is good that it has been a continuous process to simplify the tax structure. The introduction of the new tax structure was itself attempted at simplifying the tax paradigm with no exemptions and deductions. But unfortunately, what happens is when you don't have exemptions and deductions, you don't have a incentivized structure for investments and savings. And we are at a present saving rate of 8% from 32%, which is very low. Also, with the simplification, you have with the GST, you've put nearly tax on every product. Yeah, even when you talk about an individual paying a tax, the highest tax bracket is 30%, and on the GST it is 28% that he pays. So 58% is on an individual of any particular luxury product or a regular consumption product for personal use, whereas on foreign companies you have reduced the tax to 35%. You know, this kind, which is for a commercial work, this kind of non-rationalization for individuals' wealth generation or welfare does not appear to be really in tune with the systems of justice or allocations that should take place in an economy. Yeah, even for corporates, the tax structures are lower than that of the individuals. So which does not really put forward welfare of the individuals prior to that of the corporates. Again, simplification is a welcome step because a lot of people do face difficulties in filing returns, which through the governance mechanism makes it simplified. But with the faceless structure, at times even giving your requisite revised versions of the returns, you may not get a satisfactory reply, and for which there is no person to coordinate with, which adds on to the difficulty of a person who is genuinely trying to find a correction in a revised return or even with any kind of a tax refund which he wants to protest for. So it is a good structure for simplification, but does not provide for a lot of aspects which are much needed in an economy which is yet to mature in its own financial ways and development, when people are still not used to personal financing, financial literacy and the complete digitalization frameworks that may exist. Okay. Gopal sir, we were talking about infrastructure a few minutes back, and we did not cover railways in that. Railways used to have a separate budget not long back, and it has been allocated a budget of around rupees 2,55,393 crore, which we see that it has been gradually increasing leaps and bounds in the last few years. My question to you, sir, is okay, it's fine to have good trains like Vande Bharat and
and new stations are coming up. Like New Delhi station is going to be rebuilt, and there are many more stations, upgradation of all small stations to in line. But my question to you, sir, is what's the use to have of having a fast-running train, or say the mid-high-speed trains, when we don't have the tracks to run over? So I quite agree with you. If we see that, we have not, it's not unheard that there have been voices that the railway system is clogged. A lot of delays, trains get late. Also from the transport sector and logistics sector, if you see, there is a great amount of skewness in what railway carries today. Railway used to have, even 50 years back, railway's share, modal share in freight movement was about 66%. So 2/3 of all freight in India or the country was being carried by railways. Today, slowly, there has been a secular, downfall in that movement. And today, probably, it's anything between 25 to 30%. Huge drop. And if you see what happened last budget, the government had indicated creation of economic corridors for railways, and that included port connectivity corridors, high density, wherever there is very high density, of freight movement corridors, and third is very specific to industry, cement corridors, steel corridors. Now, I will not, it's very difficult for, as you yourself say, railway itself is a very huge, ministry, department and a sector in the country, One very important element that is now coming up is that we heard that the western part of the dedicated freight corridor will get completed in December next year, that is 2025. It was conceived in 2005-06. It has taken too long, but I think so there has been a huge push in this unique infrastructure for in the last 4 or 5 years. This is the western corridor is going to link the production centers with the ports not just in the in Maharashtra region, that is JNPT, the upcoming Vadhavan port, but also in Gujarat, which is the Mundra and the Kandla ports. So it is very important that this dedicated freight corridor starts, its operations very soon. 95% is complete. That one infrastructure, I would say, would be iconic for our entire industry. It will have spin-off effects. Freight rates for that are kept very, very competitive because it will have to compete with the road sector. Roads is also, we are having a Delhi-Mumbai expressway, and electrical, sections are being planned there, So there is going to be a competition from the road sector for that particular. Again, for the eastern freight corridor, that has started operating, and if you see, again, for the last 2-3 years, we have not been seeing that power plants which are in the hinterland are facing fuel and coal shortages because the movement has improved quite a bit. जी गोपाल जी, यामिनी जी हम आ रहे हैं और भी बहुत सारे सवाल हैं। हम सुबह से लगातार संसद टीवी बजट को लेकर के खास कवरेज हमारी जारी है। आम बजट विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज होता है। हम बात कर रहे हैं कि क्या यह बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं पर खरा उतरा है और क्या बजट अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला बजट है, क्योंकि तभी तो देश आगे बढ़ेगा और 2047 तक भारत की पहचान विकसित भारत के तौर पर होगी। महज कुछ देर में आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का खास इंटरव्यू भी देखने जा रहे हैं। कुछ समय ही बचा है जब हम देखेंगे और हम देश पूरा जानेगा कि आखिर बजट को लेकर के एक हम कह सकते हैं कि क्या कंक्लूजन जो है वो वित्त मंत्री दे रही हैं पूरे देश को। यामिनी जी, एक सवाल, हालांकि सुबह से ही इस पर कई बार मंथन, इस पर चर्चा हो रही, फिर भी मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि जो 4 पिलर्स को ध्यान में रखा गया, जो गरीब वर्ग है, जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, जो अन्नदाता हैं, इस मैटर के अलावा क्या आप जो सबसे ज़्यादा जो सवाल उठते हैं रोजगार के अवसर को लेकर के, अगर मैं ऑल ओवर बजट को देखूँ तो क्या इस सवाल का जवाब आज के बजट में मिल चुका है? जी देखिए, इन्वेस्टमेंट को काफ़ी हद तक प्रमोट करने की कोशिश की गई है, चाहे वो फॉरेन कंपनीज़ के माध्यम से हो या एक मार्केट ड्रिवन स्ट्रक्चर बनाने के तौर पे हो।
पर उससे उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा या नहीं वो कहना मुश्किल है। ख़ास तौर पे जब आप एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में या कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में उस एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका खासा ध्यान टेक्नोलॉजी की तरफ है जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी पे आप ध्यान दे रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी पे ध्यान देख रहे हैं, पर आप उसमें स्पेसिफिक्स ये नहीं देख रहे कि किस स्पेसिफिक सेक्टर्स में ग्रोथ होनी चाहिए जहाँ पे लेबर काफ़ी हद तक एम्प्लॉयड है। रोकना चाहूँगी आपको, देश को इस वक्त खास इंटरव्यू जो है हम जिसकी बात कर रहे थे शुरू हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आइए उनको सुनते हैं। सरकार का, एनडीए सरकार के तीसरे चरण का पहला पूर्ण बजट है। इस खास प्रोग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अजय मिश्र, मेरे साथ अंग्रेजी में इस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी मार्क पैट्रिक लेन। बहुत धन्यवाद मार्क जी। और वित्त मंत्री जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डीडी नेटवर्क को समय देने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल कि अगर हम पूरे बजट को समेटने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि अब की बार रोजगार ही रोजगार। तो ये जो 5 स्कीम्स जिसकी आपने शुरुआत की, एम्प्लॉयमेंट पर इतना बड़ा फोकस क्यों आपने दिया, इसके पीछे की सोच क्या है? क्योंकि आज दुनिया भर हमारे भारतीय युवा जाकर के बहुत सारे कंपनियों में अच्छे उद्योग कर रहे हैं, रोजगार उनको मिल रही है और उन पर टैलेंट के ट्रस्ट है। मतलब एम्प्लॉयर विदेश में टैलेंट देख रहा है तो पूरे दुनिया में भारतीय युवा को प्रेफर करते हैं। मगर भारत देश के अंदर उनको जितना अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए उतना मिलना अभी उस लेवल पर नहीं हो रहा है। इसीलिए सरकार के द्वारा हमने ये प्रोत्साहन देने के लिए 5 स्कीम के द्वारा मैं टोटल इस स्कीम का पिक्चर दे रही हूँ। 2 लाख करोड़ का हमारे 5 साल में इसके ऊपर खर्च होने वाले हैं और हम टोटली मानते हैं 4 करोड़ 4.1 करोड़ युवा इससे बेनिफिट पाएंगे। कुछ युवा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय के नाते, मतलब फर्स्ट टाइम जॉब के नाते उनका बेनिफिट होगा। कुछ युवा बेटर जॉब के लिए सेकंड जॉब लेंगे, उनका भी बेनिफिट होगा। इन दोनों के सर्कमस्टेंसेस, इन दोनों सिचुएशन में एम्प्लॉयर को भी हम बेनिफिट दे रहे हैं जिससे वो लेने का कष्ट करेंगे और रखने का, उनको 2 साल कम से कम जॉब में रखने का करेंगे। तीसरी, स्किलिंग के लिए स्टेट्स के साथ जहां ITI से वो स्टेट्स संभालते हैं, उन ITIs में टेक्निकली पिछले मैं बोल सकती हूँ 10, 15, 20 साल से उतना जितना इन्वेस्टमेंट होना है उनका क्या बोलते हैं टीचिंग मटेरियल्स या मशीन्स, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करने के लिए, इन सभी इन्वेस्टमेंट का कमी है। और पिछले मान लीजिए 20-30 इयर्स में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, मगर अभी डिमांड है इंडस्ट्री 4.0 का। मतलब तब अगर आप इन्वेस्ट भी किए तो अब का इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट अलग हो गया है। इसलिए उन ITIs में ये इक्विपमेंट इंडस्ट्री 4.0 को जो चाहिए इक्विपमेंट वो सब खरीद कर हम रखेंगे और इसमें प्राइवेट सेक्टर का साथ ले रहे हैं। वो हमारे साथ और राज्य सरकार के साथ काम करके 10th पास करके छोड़कर बाहर आने वाले लड़कों को, लड़कियों को ITI के द्वारा जहां ट्रेनिंग मिलना है, स्किलिंग होना है, जिसके बाद उनको कुछ डिप्लोमा वगैरह मिलता है, उसमें भी हम पैसा डाल करके युवाओं को अच्छा ट्रेनर्स को सैलरी दे करके उधर ट्रेनिंग का। सो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय, सेकेंड टाइम एम्प्लॉय, सेकेंड और थर्ड टाइम एम्प्लॉय, फ्रेश 10th स्टैंडर्ड स्किलिंग और फाइनली इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के विषय में मैं गर्व से कहना चाह रही हूँ 1 करोड़ युवा डायरेक्टली उस इंटर्नशिप से बेनिफिट करेंगे क्योंकि टॉप 500 कंपनीज के साथ भारत सरकार बात करेगी और उनके CSR के द्वारा वो इसमें जोड़ सकते हैं कि अच्छा ट्रेनर्स भी रखें उनके कंपनी के द्वारा और कंपनी शॉप फ्लोर में इन लोगों को एक्सपोजर दे, हैंड्स ऑन लर्निंग का इंटर्नशिप दें, 1 साल पूरे इंटर्नशिप दें,
और उसके बाद अगर ये बाहर आएंगे उनके सीवी में टॉप 500 कंपनी के एक कंपनी इनको इंटर्नशिप दिया तो इनका वैल्यू बढ़ेगी, जॉब में रेडीनेस बढ़ेगी एम्प्लॉयर को इनको रहने। ऐसे करके 5 स्कीम्स जिसके द्वारा युवाओं को एकदम उनके हर स्तर के लिए ट्रेनिंग का मॉड्यूल बना करके हम आगे आए हैं। ये प्रधानमंत्री जी का हर एक स्कीम के ऊपर ध्यान दिला करके टेलर मेड स्कीम्स तैयार हुआ है। Madam Finance Minister, you've given a provision for 1.52 lakh crore rupees for the agriculture sector and 2.66 lakh crore rupees for rural development, including rural infrastructure. So effectively, how does this meet the goal of what the economic survey was looking at as making agriculture an engine for growth? See, one thing I want to dispel. When we say these kind of amounts, people don't realize these are other than what is running as schemes. Manrega, nobody mentioned in the budget. Madam Finance Minister has not mentioned Manrega. It doesn't mean that I'm going to stop Manrega to run this. They are on-demand programs which keep going, for which I've made provision. I have not mentioned it in the speech, but it is in my records. It's in the budget revenue expenditure ka statement jahan hai, you get that there. So this misconceived notion that if it doesn't appear in the speech, it's not at all there, is wrong. I want to make that plain. Right. Now, when you have rightly quoted the amounts for agriculture, we are saying what is very important is to reach to the farmers such inputs which are worthy for them to toil in the soil. So it's one thing you give MSPs, it's one thing you give Kisan Samman Nidhi, all that will go on. Right. But Kisan today requires high quality seeds, better inputs, and for that good research with which we can. I made one announcement also in this budget, 109 varieties of seeds, both for field crops and also for horticulture. And also the climate resilient. Climate resilient seeds. Most of our farmers today buy seeds which can't take this extreme heat, sudden flooding, and then also sometimes scarcity of irrigatable waters and so on. So I'm very proud that Indian agriculture scientists of themselves come up with this 109 resilient varieties, which I'm sure will soon be launched, and they will be we'll be taking it down to the farmer so that they can benefit. All so developed that's in one. India, ma'am? All developed in India. Okay. And even better is we are looking at giving input support also to the farmers. As I said, more than 50% of his input cost should be met by the amounts that we give them. So these are great detail. And rural development is looking at not just PM Gram Sadak Yojana, not just building homes, PM Awas Yojana, where big amounts are going, that is important. 3 crore new homes. 25,000 new Gram Panchayats will get road network. Over and above this, we are looking at actually hard infrastructure in the rural areas, whether you're having silos for storage of grains, whether you've got power, actually 3-phase power going there with smart meters, and making sure that 5G connectivity reaches them, because today e-commerce for agriculture, for MSME, for meeting the global markets is a requirement in the villages. And these special vegetable clusters, ma'am, also it may help this, fighting the food inflation. Yes, yes, because the supply side management of perishable crops is a very big challenge for any government. Right. We have a group of ministers which looks at the situation every 15 days and imports from some countries, from Nepal, from somewhere else, and redistributes. But if we are able to manage a perishable crops in its production, storage and redistribution better, we'll be able to control prices. You're right in pointing that out. वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी ने फर्स्ट रिएक्शन जो डीडी नेटवर्क पर दिया उसमें आपको बधाई दी, आपकी टीम को बधाई दी, साथ ही उन्होंने कहा कि ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर के लिए दिया गया बजट है। अब जब आपने एक रोड मैप इंटरिम बजट में आपने प्रॉमिस किया था कि हम विकसित भारत का रोड मैप देंगे, आपने इस पूर्ण बजट में दिया। ये जो 9 पिलर्स आपने डिफाइन किए हैं, आपको लगता है कि ये
एक विकसित भारत की नींव रखते हैं, और किस तरह से इसके पीछे का दर्शन थोड़ा सा समझाएंगे हमारे दर्शकों को प्लीज। बिल्कुल, ये 9 पर्टिकुलर आइटम्स स्पेसिफिकली हमने बोला है। आप अगर अब देखेंगे यूजुअल क्लेम्स ऑफ हाउसेस, रोड्स, ये नहीं है। इन एवरी वन ऑफ देम एक फ्यूचरिस्टिक ध्यान दिया गया। फर्स्ट पॉइंट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिलेटेड, क्योंकि वोट ऑन अकाउंट बजट में हमने एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए भी और अभी भी एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए बहुत बड़ा फंड अनाउंस करी, और उसके द्वारा मॉडर्नाइज करने के लिए एग्रीकल्चर में क्रॉप पैटर्न के लिए, और ये 400 गांव में जाकर के खरीफ क्रॉप का, लैंड असेसमेंट का और फार्मर्स रजिस्ट्री में एंटर करने के लिए डीपीआई का इस्तेमाल, जो डीपीआई का इस्तेमाल, ये सब फ्यूचरिस्टिक फॉर मॉडर्नाइजिंग इंडियाज एग्रीकल्चर, वो एक पॉइंट है। फिर सोशल जस्टिस के साथ प्रधानमंत्री उन्नत ट्राइबल विलेज, इसमें 63,000 विलेजेस इन विच देर आर ट्राइबल बहुल majority, tribal majority villages. We are going to absolutely provide everything to make them compare with any other better managed ग्राम पंचायत। 5 करोड़ जनजाति, हाँ, 5 करोड़ जनजाति को। सो सोशल जस्टिस मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आप अच्छे कहीं स्कूल चलाओ और जिसमें वंचित वर्गों का बच्चे को ले आओ, वो भी करना, ये भी करना। मैम, working women's hostel, creches, women-specific skilling programs, promotion of market access for self-help groups, these are some of the things you mentioned. And you said that women's-led development will see an allocation of more than 3 lakh crore rupees. Could you specify some of the, how this is going to be spent? See, actually speaking, we have been consistently maintaining that the emphasis for bringing more women to productive activities will have to be continued, and that is why in economic survey yesterday you saw the figures that from somewhere close to 2018 16.7% to 37, women's participation in workforce has been highlighted in the economic survey. So in the last 10 years, where we started with a simple Beti Bachao Beti Padhao to bringing more women and incentivizing women in work and providing them, loans to uplift them. Even in this budget, we have given emphasis for land and property registration for women. So like that, at every stage when we center focus on women, it has brought in a bit of a mindset change, like the way in which in the rural areas, Drone Didi has actually not just made women to be able to operate drones, but the mindset in the village that our women can just not do our regular kitchen work, but here are they in the fields which are essentially male dominated. Only for the haranguing, monotonous physical labor, de-weeding the field, do you find women coming. But here in the villages, women are operating drone, they are able to make assessment of the crop density, they are able to use it for spraying fertilizer, chemical and so on. And if this is how villages and their mindsets are changing towards women, it gives them a prominence. So in many of that is why, if you remember last time, we had come up with a special savings scheme, Mahila Samman Bachat Nidhi. What a response we had in it. Because people realize saving in the name of women actually helps. They've come out to invest, women have themselves come out, and women themselves are saving in some other, their child or their mother's names. Right. So this government has not lost an opportunity in bringing to focus women and women's needs. Whether it is the simple sanitary pad, which Honorable PM spoke about, even from Red Fort, you can see the priority is given for women, and that's what has explained why 3 lakh crores for women and women-led. Today Anganwadis are standing out for the kind of quality work that they're doing. They can be even better improved. You're going to have early childhood education centers in those Anganwadis, because children's learning also, as much as nutrition and care is important, their learning should start there before they enter schools.
All these are priorities which are executed by women. वित्त मंत्री जी, इससे पहले कि मैं नए टैक्स रिजीम पर आपसे सवाल करूं, एक बार फिर से शायद ये रिएटरेट करने की ज़रूरत है कि मनरेगा जैसी योजनाएं जो हम लोग जो सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की योजना देते हैं, उस तरह की किसान सम्मान निधि, ये जो पहले से प्रोग्राम चलते आ रहे हैं वो जारी रहेंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल उसमें जब आपने जिक्र नहीं किया तो लोगों को लग रहा है कि ये नई स्कीम का क्या हुआ, उसके बजटीय प्रावधान का क्या हुआ। एक बार प्लीज सबको शायद क्लैरिफाई करने की जरूरत है। एब्सोल्युटली क्लैरिफाई करना चाह रही हूं। आप समझ लीजिए 1.5 घंटा भाषण, 1 hour, टुडे आई फिनिश्ड इट इन 82 मिनट्स, मान लीजिए 90 मिनट्स। उस 1.5 hour स्पीच में मैं कितना विषय जोड़ सकूंगी, वो एक है। दूसरा, स्टेट्स के विषय में भी बहुत सारे स्टेट्स बोले, हमारे स्टेट के ऊपर आप एक बात भी नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि उस स्टेट में कोई पैसा नहीं जाएगा, हर स्कीम लागू है उधर भी, हर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी, हर सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी, और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से पैसा के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहा, वो भी चलेगा। और घोषणा हमने पहले नहीं किए, मगर उदाहरण के लिए मैं बोल रही हूं, महाराष्ट्र में पिछले 70 इयर्स में भारत देश में इसके बारे में नहीं सोचा। ऐसे बदावन पोर्ट जो भारत देश का सबसे बड़ा पोर्ट होगा, और उसका ड्राफ्ट विल बी द बिगेस्ट, इट विल ड्रॉ सम ऑफ द बेस्ट लार्ज वेसल्स टू इंडियन शोर्स। वो पोर्ट अनाउंसमेंट और उसका कैबिनेट अप्रूवल 76,000 करोड़ और सम अमाउंट इज गोइंग देयर। बजट में मेंशन हुआ है क्या? पिछले बजट में और इस बजट में, मगर गया प्रोजेक्ट, और उधर प्रोजेक्ट लागू हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए मैं इस डाउट को दूर करना चाह रही हूं कि मनरेगा जैसी स्कीम या कुछ और स्कीम, पीएम स्वनिधि, हाँ पीएम आवास तो मैं बोली, पीएम स्वनिधि, मुद्रा, ऐसे स्कीम्स जो होते हैं वो चालू ही रहेगा। मैं सिर्फ इसीलिए कि ना मैं इसका जिक्र नहीं किया, ये कोई कुछ नहीं हो रहा, बंद नहीं हो रहा, वो चालू है, चालू रहेगा, आगे भी रहेगा। But you did mention the states, and you mentioned new airports, medical colleges, sports infrastructure in Bihar, and there's plenty of allocation for Andhra Pradesh as we see in the budget. Are there some special messages that you're sending out here? No, first of all, Andhra Pradesh Reorganization Act required all this to be done anyway. So in the first 5-10 years, in fact 10 full years since after the AP Reorganization Act came into being, there were 2 states were bifurcated. We have been giving money for the backward district program, taking some of the primary institutions to AIIMS, IIT, Triple IIT, such institutions have all been taken. So there are certain projects which are getting staggered. Polavaram is one of the biggest national irrigation project, with the dam, storage capacity being immense, Godavari waters being kept there, and from there irrigation going into the fields. This is a national project. We'll certainly support it, and that is what I have emphasized. And similar is the backward region development in Andhra Pradesh. Rayalaseema, North Coastal Andhra Pradesh, we're all part of the act. We are only definitely assuring the newly elected government in Andhra Pradesh that we are with them. We will stand by them. We will ensure those promises which are given in the AP Reorganization Act will be fulfilled. और माँ की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जो पूर्वोदय योजना की आपने शुरुआत की है मैम, मुझे याद आता है अंतरिम बजट में आपने कहा था कि ये जो पूरब के राज्य हैं वो नए भारत के नए ग्रोथ के नए इंजन साबित होंगे। तो अब ये जो पूर्व के राज्यों जिसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्य शामिल है, पश्चिम बंगाल इंक्लूडेड, कौन सी योजनाओं पर आप फोकस करने जा रहे हैं और कैसे ये नए ग्रोथ का इंजन बनेगा? हर गवर्नमेंट का स्कीम इन सभी राज्यों में लागू होगा। आज मुझे प्रश्न पूछा गया कि वेस्ट बंगाल का जिक्र नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, बंगाल को कोई कुछ नहीं मिलेगा क्या? जरूर गलत बात है। हर स्कीम पूर्वोदय में हर राज्य में जाएगा, और इसके अलावा उनके बिग टिकट प्रोजेक्ट्स जो भी है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR जब आएगा
EFC के द्वारा जाएगा, उनका स्कीम भी, उनका प्रोजेक्ट्स का भी हम उठाएंगे और लागू करेंगे. So focus for developing these states are because they're mineral rich. They also need industry. Full three-phase power is not available in some of the pockets within those places. उन सब का power पहुंचाएंगे और अच्छा सड़क, अच्छा एक सी पोर्ट के साथ उनको जोड़ना चाहिए क्योंकि लैंड लॉक्ड है, एक्सेप्ट बंगाल एंड उड़ीसा, वो सब लैंड लॉक स्टेट्स है. उनको हम जोड़ना चाहिए पोर्ट के साथ और इस रास्ता बनाना चाहिए अच्छा, और इस बीच में वाटर वेज का भी इंप्रूव करना है हर एस्पेक्ट में, क्योंकि विकसित भारत अचीव हम करना है तो हर राज्य का भविष्य अच्छा रहना चाहिए, उनमें अच्छा एंडोमेंट्स भी होना चाहिए, सब उधर भी करेंगे. लेकिन बिहार में आपने 47,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनाउंसमेंट किया बजट के भाषण में, और जो बुनियादी ढांचे का निर्माण वहां पर किया जाना है वो क्या बहुत जरूरी था बिहार के विकास के लिए, जिससे वो मुख्य धारा में शामिल हो पाए? मैं एक जरूर बिहार के विषय में बात बोलूंगी. बाढ़ में जितना नॉर्थ बिहार हर साल नुकसान फेस कर रहा है वो मन को छूता है. एक्चुअली इट मेक्स यू फील सॉरी हर साल कैसे, और इसको अध्ययन करेंगे तो बिहार के हाथ में नहीं है विषय, क्योंकि नदियां नेपाल से आ रहे हैं और हमारे कोशिश नेपाल सरकार के साथ बात करने के लिए बहुत सालों से है और किसी का दोष नहीं किया, मगर वो डिले भी हो रही है. मगर वो डिले के कारण मैं इतना डिटेल से नहीं पा रही हूं. जब भी वो होगा अच्छा होने दो, मगर तब तक बिहार को कुछ राहत मिलेगा कि नहीं मिलेगा. इस कारण हम इस बार कोसी मीची प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया, और इसके अलावा हम ये भी बोल रहे हैं अगर बराजस बनना है, सिर्फ वो पानी जो बहकर आ रहा है उसको इधर उधर इरिगेशन के लिए हम डाइवर्ट कर पाएंगे, फ्लड से जो नुकसान बिहार को हो रही है हर साल हो रही है उसको हम रोक पाएंगे. Ma'am, how will these e-commerce hubs that are being set up with a public-private partnership work, and how they're benefiting the MSMEs reach the international markets? That's one part. And then you also talked about these plug-and-play industrial parks, 100 of them. Could you expand on how these are all going to change the way we look at business? First of all, when you're looking at the plug-and-play, and you asked one the e-commerce for the MSMEs. We announced it for the MSMEs. Right. You look at the example of what this open network for digital commerce, ONDC, which exists, is doing. It's actually given at the cost of the government, meaning they don't have to pay any charge for it, access for MSMEs to reach the global markets. ONDC has proven a very, very powerful catalyst. Now, when you form e-commerce hubs, you're making sure, because of these digital assets that we have, and MSMEs in particular can benefit from, it's like creating a special economic zone, somewhat. You're creating it in the digital world so that these MSME can be onboarded, and for them specifically, either by sector or by some kind of a common denominator, we will be able to give them access to the overseas market. That is a facility which government will spend on so that MSMEs don't have to invest in them, and we give them the access for it. Right. That is right. And the plug-and-play parks. This is again one of the concepts with which we are seeing that main big investment for creating such hubs don't come easily. We want industry also to participate with us. So when you set up a hub in one place, it doesn't mean the other place cannot benefit. So we want to make sure this becomes the mother center, as it were, and those centers can benefit from the endowments which are being put here, and smaller centers can benefit by attaching themselves like a spoke to the hub of the wheel. वित्त मंत्री जी, अब वो सवाल जिसका सभी लोग शायद इंतजार कर रहे होंगे वो है टैक्स रिजीम को लेकर के. नई टैक्स रिजीम में पहले आपने 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं रखा था, लेकिन अब नई टैक्स स्लैब जो आपने बनाई है
उसके पीछे का तर्क क्या है? जब आप कहते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट की आप समीक्षा करेंगी अगले 6 महीने में, तो क्या हम डायरेक्ट टैक्स कोड की तरफ जा रहे हैं? जिस तरह से जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म देखा, डायरेक्ट टैक्स साइड में भी हम बड़े रिफॉर्म की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल कदम बढ़ा रहे हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। एज इट इज ये न्यू टैक्स रजीम, ओल्ड टैक्स रजीम से हटकर इसको बनाना क्यों था, आवश्यकता क्यों था? इसीलिए था कि एग्जेम्पशंस जिनको नहीं चाहिए वो उसी सिस्टम में रहकर फॉर्म फिलअप करके मुझे एग्जेम्पशन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए करने के बजाय ये सिस्टम में आ जाओ। रेट भी कम है, आपको कोई एग्जेम्पशंस का आवश्यकता अगर नहीं है तो इसमें बेहतर रेट मिल रहा है। और दूसरा, जब ये स्कीम लॉन्च होने के बाद लोग ये बोले कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कम से कम दो, हमने 50,000 तक ले आए। इस बार उस 50,000 को हम 75,000 बना दिया, जिससे लोगों के हाथ में कोई पैसा बच जाएगा। इसके अलावा रेट में भी सिंप्लीफाई किए और कम भी कर दिया, जिससे मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत मिलेगा और उनको लगेगा कि उनके लिए हम थोड़ा उनके हाथ में पैसा बचने के लिए रास्ता दिया है। ये इस बार के टैक्स रेट्स के ऊपर और स्टैंडर्ड डिडक्शन के द्वारा मिडिल क्लास के लिए राहत। जब मैं बोल रही हूं इनकम टैक्स को रिव्यू करूंगी, मकसद यही है कि एक उदाहरण ओल्ड रजीम और न्यू रजीम का मैंने दिया, बाकी सब भी है जिसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए हम अभी काम जरूर करेंगे, जिससे इनकम टैक्स एक्ट मतलब इतना बड़ा किताब उसको पढ़ने देख लो, ये करो, ये सिंपल फॉर्म के साथ आप टैक्स भर सकते हैं और इसका फॉलो भी सिंपल होना चाहिए। और जैसे ऑलरेडी हम प्री फिल्ड फॉर्म्स देते हैं लोग को, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा फिक्स्ड डिपॉजिट उधर था, मुझे जानकारी नहीं था, आप फिर प्री फिल्ड में। ऐसे सिंप्लीफिकेशन करने के लिए टेक्नोलॉजी को हम उपयोग करते हुए रेट को भी कम करते हुए राहत देना चाहते हैं। Madam Finance Minister, the changes that you've announced for customs duties, to what extent does it, how does it keep us away from the China conundrum? No, first of all, if you look at the selection of items for which I have given a basic custom duty reduction or somewhere elimination of duties, they are the essential inputs for labor intensive manufacturing. So gems and jewelry, gold or diamonds, raw diamonds, or leather related, shrimp related, they are all sectors. Textile. These are sectors where you have intensive labor employed. When you bring raw material for cheap, their expansion plans, their plans to export whatever they produce will all go through a positive change. And because of that, therefore, employment will also improve. That is the primary and, in fact, I can say only condition on which the basic customs duties were reduced. उसकी वजह से शायद आज सोने और चांदी की कीमतों में भी काफ़ी गिरावट आई है, 5% तक की गिरावट है, वो भी शायद बहुत सारे लोगों को खुशी दे रहा होगा। लेकिन अब मैं सवाल पे आना चाहता हूँ जो वित्तीय अनुशासन का, जो आपने 4.9% का फिस्कल डेफिसिट अचीव किया है, ये तो बहुत सारे लोगों के लिए आश्चर्य है, क्योंकि 5.1 आपने अभी 3 महीने पहले फरवरी में ही वायदा किया था। ऐसा क्या हो गया कि आप 4.9 पे पहुंचे और कैसे आपको लगता है कि आप 4.5, 4.1 का जो ग्लाइडिंग पाथ है उसको आप अचीव कर पाएंगे? वित्तीय अनुशासन पर आपका क्या रुख रहा है इस बजट को लेकर? मैं जरूर इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहती हूँ। जितना वो खर्च करने के लिए बोलते हैं वंचित लोगों को, पिछड़े हुए रीजन्स के लिए, उतना ही, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बार 11,11,111 करोड़ पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अलॉट किए। जितना उसमें ध्यान देते हैं उतना ही वंचित लोगों को, गरीब के लिए, ट्राइबल के लिए, घर बनाने के लिए, उनका गांवों को सुधार करने के लिए खर्च भी करते हैं। मगर इसके साथ साथ बोलते रहते हैं फजूल में खर्च कहीं ना करो, कहाँ छोटे छोटे एक्सपेंडिचर का नाम पर पैसा ठीक से जा रहा नहीं जा रहा, वो सब ठीक से संभालो और टैक्स नेट को वाइडन करो। ये सब, और टैक्स में जो लूप होल्स है जिसके वजह से जो टैक्स फाइल करना है, ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स बहुत सारे हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मगर
जहां इवेशन होता है उसको प्लग करने के लिए भी बार बार याद दिलाते हैं। उसके कारण हमारे रेवेन्यू आज बोल सकते हैं आप इवेशन कम, ये नहीं है कि पूरे हटा गया, इवेशन आज भी कहीं हो रहा होगा, मगर वी आर वेरी केयरफुल ऑन दैट। एज अ रिजल्ट हमारी फिस्कल मैनेजमेंट अच्छा चल रही है, उसके वजह से जहां 5.1 बोला गया आज हम कॉन्फिडेंटली 4.9 बोल रहे हैं। Right, ma'am. And your overall tax proposals, you talk about a revenue foregone of about 7,000 crore rupees. So is this a shortfall, or do you hope to make this up because of we're having growth, tax GDP ratio is going to improve and things like that? Yes, because the way in which we have decided to spend money in building capacities, in making sure there are more efficiencies brought, productivity increase, and making sure youth get trained properly to get into good quality jobs. All this will generate economic activity which will give me that comfort to make up for that revenue foregone, which net out, I read it out today, Right. that 7,000, 8,000 crores we hope, because of the ways in which we are bringing in factors for productivity gains, Right. will help us. And other than that, of course, we also make sure that the tax net is widened. Non-tax revenues are also a source of a bit of a revenue coming in because of the dividends that you get from different public sector undertaking whose valuations have all gone up now. Ma'am, you talk about also more efficient factors of production, land, labor, capital, and entrepreneurship. What kind of reforms can we see in land? I did mention About four, land? yes, about Okay. land I did Right. say, land in the rural areas, land in urban areas. So when I mentioned about the factors of production, land related reforms, labor related reforms, capital related reforms, and entrepreneurship, of course through MSMEs, of course through training, of course through skilling is happening. So for land, what kind of reforms? Cadastral maps, digitization, and making sure land records are maintained in digital formation, stamp duty reduction, working with the states for that, all that is happening on that. And similarly for labor, they have been beautifully, completely, exhaustively mentioned in the speech itself. वित्त मंत्री जी, एमएसएमई सेक्टर के लिए जो आपने प्रावधान किए हैं, चाहे वो मुद्रा लोन को डबल करने की बात हो या फिर जो आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं मुश्किल परिस्थितियों में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और ये एमएसएमई को सपोर्ट आप कब तक जारी रखेंगे? एमएसएमई को लेकर के आपकी नीतियां किस दिशा में जा रही हैं? नहीं, ये पहले हम समझ लें कि 8 स्पेसिफिक मेजर्स हमने एमएसएमई के लिए घोषणा की है इस बजट में। उन 8 में से 3 बहुत ही प्रमुख, 8 भी एमएसएमई के खुद के सजेशन से, व्हेन वी हैड स्टेक होल्डर कंसल्टेशन प्री बजट, उसमें एमएसएमई का खुद के सजेशन है ये 8 ऐसे करिए वैसे करिए करके, और उसमें हम भी सरकार के द्वारा जोड़े हैं आइडियाज। एमएसएमई के लिए बहुत ही दुखदायक विषय है कि 90 डेज अगर उनके सर्विस नहीं होता एनपीए हो जाते हैं, मगर इस बीच में स्ट्रेस्ड लेवल में जब रहते हैं उनका कोई सोल्यूशन मिलता नहीं है, जबकि बैंक्स नॉर्मली उनको वर्किंग कैपिटल ही देते हैं। वो ये नहीं देते हैं जैसे बड़ा कंपनीज को देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए, कुछ इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसा नहीं देते। सो इस बार जहां हम एक सोल्यूशन देना था कि एनपीए 90 डेज होना नहीं है, 45 डेज से अगर दिक्कत है, स्ट्रेस है, उनको कुछ पैसा दो, उसके लिए एक फंड भी ओपन किया, गारंटी का सिस्टम भी दिया, बैंक के द्वारा वो चालू होगा। मगर दूसरे ओर हम ये भी उनको दे रहे हैं कि सिर्फ वर्किंग कैपिटल नहीं, हम गारंटी आपको देंगे, आप कोई कोलैटरल या थर्ड पार्टी गारंटी ले आने के लिए आवश्यकता नहीं है। आपको अगर कुछ इक्विपमेंट खरीदना है, प्लांट कुछ खरीदना है, मशीन खरीदना है, आपको लोन मिलेगा। सो आप देख लीजिए, 2 प्रॉब्लम्स हमारी घोषणा के कारण एड्रेस हो रही है जो क्रिटिकल है एमएसएमई। और तीसरा, सिर्फ बैंक जो एसएमई बिजनेस को समझते नहीं है वो लोन दे रहे हैं, उनको बहुत बहस करना पड़ रहा है उनसे, नहीं नहीं मेरा बिजनेस ऐसा चलता है, माय टर्नओवर साइकिल इज लाइक दिस। हम इसलिए सिडबी को ही जाकर के हर एमएसएमई क्लस्टर में घोषित हुए क्लस्टर में आप ही प्रेजेंट हो जाओ
और डायरेक्टली एमएसएमई को लोन दो, जिससे एमएसएमई बिजनेस समझने वाले स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सीधा उनसे डील करें। ये भी घोषणा में आया है। सो एमएसएमई के लिए मुझे लगता है कि एकदम अच्छा सा 8 यूजफुल सजेशंस हैव कम आउट एंड वी पुट मनी आल्सो फॉर इट। और आपने अगर मैं इसी में सप्लीमेंट्री दूं, आपने मुद्रा लोन को बढ़ा दिया, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए आपने एंजल टैक्स को एबॉलिश कर दिया, शायद उस पर बहुत आपको पॉजिटिव रिएक्शंस मिल रहे होंगे। और साथ ही साथ स्पेस सेक्टर के लिए 1000 करोड़ रुपए का नया फंड बनाने की आपने घोषणा की है। तो ये सब कुछ स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल प्रोत्साहन स्वरोजगार के लिए इन सब के द्वारा मिलेगा। और जब स्वरोजगार स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप में बात करते हैं, स्वरोजगार तक ही सीमित नहीं है। एक व्यक्ति जिनके पास आइडिया है, इनोवेशन है, वो इस प्रोत्साहन के कारण और एंजल टैक्स अबॉलिश करने के कारण जो फंडिंग उनको मिलेगा, उससे वो एक व्यक्ति आगे बढ़ने के पीछे 10 लोग उनके एम्प्लॉय भी होंगे। सो देयर इज an effect which this one person can have. Ma'am, I know you've answered this question in Hindi right at the start about employment and really about first-time employees who are getting into the formal sector. There's the scheme that you give 1 month wage for 15,000 rupees. 15,000 rupees. And also there's the other for the internships. Could you, I mean, young people are wanting to know how they are to avail this. Actually, just for information, I will tell you, all these details are put out in the website in all detail, and the documents which go along with my budget speech in the annexure have each scheme detailed out. So I'll be putting it out also in the next few days so that more people get to know it. So today, for instance, scheme 1 which you talked about, which in my budget speech I've called scheme A, a fresh first-time employee, if recruited by somebody, that employee may be recruited for any salary, 50,000, 40,000, 30,000 or 1 lakh. But up to 1 lakh, if you recruit a new fresh employee, I from the government will give 15,000 rupees as this 1 month wage, which will be spread between in 3 installments. So that will be given. In this also the employer also receives, because he will register him as a EPFO employee. This is one scheme, and here the employee and the employer get incentive, but this is a first time employee. The second scheme looks at employees also first time and also for somebody else who can get into the job. For him also we give both for the employer and employee allowances. But in this, if the employer doesn't retain him for 2 years and removes him within a year, let's say, every incentive given to the employer will have to be refunded or paid back. So we are making sure that under each scheme there are more and more new people coming in, fresh appointments happening. Companies will be incentivized to grow. Suppose you are already running a company with 100, if you can scale up and get another 50 more, you get the incentive. So there are 2 of these schemes, and then the skilling through ITI, a 4th one through the internship in top 500 companies. Yeah, that's the one, a little more clarity, because a lot of youngsters will be hoping to get the internship. I'll put it out in the next few days, the details of each one, and I'm sure in the parliament I'll get the opportunity also to describe each one of them in all its detail. We mean very seriously to implement all of them. वित्त मंत्री जी, पिछले 3 सालों की अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो औसतन हम 8% की दर से बढ़े हैं। पिछले साल तो आश्चर्यजनक रूप से 8.2% का ग्रोथ रेट देश को मिला है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि अगर हम लंबे समय तक 7% की दर से विकास करना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र तीनों को एक साथ आना होगा, निवेश करना होगा और एक साथ कदम ताल करना होगा। आपको लगता है कि बजट में जो आपने प्रोविजंस किए हैं और कितना ग्रोथ रेट आप टारगेट कर रही हैं इन द शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म to get the private sector and state governments along? Normally मैं growth numbers के ऊपर बहुत चर्चा नहीं करती हूँ, इसलिए कि कदम हम उठा रहे हैं जिससे एक्टिविटी जनरेट होगा। इस बार एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के ऊपर बहुत आगे आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने घोषणा की
इंटरिम बजट में, उसको हम भूल जाएंगे। नहीं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ और उसमें 1.50 लाख स्टेट्स के लिए भी दे रहे, इंटरेस्ट फ्री 50 ईयर के लिए। इन सब के द्वारा हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इकोनॉमी में एक्टिविटी बढ़ेगी और उसके कारण पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर के मल्टीप्लायर बहुत एक्चुअली हाई होता है, 2.48 to 3 तक होता है। रेवेन्यू का आज मैं हाथ में पैसा डालूं उससे हमें 1 रुपी से कम ही मिलता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर अच्छा रहने के कारण ही पिछले 3 साल में हम ग्रोथ इतना अचीव कर पाए। हम उसमें स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, इसीलिए अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करना चाहते हैं, इसके अलावा ट्रेनिंग एंड यूथ। Ma'am, you've talked about developing a taxonomy for climate finance and enhancing the availability of capital for climate adaptation and mitigation. What is this taxonomy? Taxonomy is when you start classifying different kinds of, it is an expression used for various other things which are developing. Okay. So what is classified in let us say climate related matters? How do you tax certain things? How you not tax? Tax meaning not in taxonomy. Taxonomy is what kind of items come into certain kind of green energy, right, which don't come under green. How will you calculate the emission counts, and on the basis of emission, how do you bring the carbon market to efficiently function? Those are not clear yet for India itself. Right. So we need to have enough work done through let's say domain experts to understand what is the classification we need under each one of them. How do we monetize? How do we calculate what kind of emissions happen? And how do we actually trade on these? You know, carbon trading and other things, right, will depend on the classification that we have. वित्त मंत्री जी, अंतिम that सवाल we don't have now, we'll need to have. वित्त मंत्री जी, अंतिम सवाल इसका खास साक्षात्कार में आपसे ये समझना चाहेंगे कि कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपने बदलाव किए हैं, उसके पीछे की क्या रणनीति है, क्या सोच है, और साथ ही साथ क्या आप वाकई थोड़ा सा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जो ट्रेड कर रहे हैं लोग उसको लेकर चिंतित हैं, जिसकी वजह से आपने एसटीटी उस पर बढ़ाने का निर्णय लिया है? नहीं, पहले विषय ये है कि इसको मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ और मैं ऑफिस जा करके इसके ऊपर जरूर सीबीडीटी के द्वारा थोड़ा व्याख्या मतलब एक्सप्लेनेशन देने के लिए भी बोलूंगी। हमारे इरादा ये था कि हर एसेट क्लास को आप इंडेक्सेशन के द्वारा 20 से इंडेक्स यूज करो, इंडेक्सेशन यूज करो, 15 में आ जाओ या 14 में आ जाओ, फिर उसके ऊपर फैक्टर रख के कैलकुलेशन करो। हमने सेवरल यूज केसेस को अध्ययन करने के बाद 13.5 से कम किसी को अब तक यूज केसेस में कोई एसेट क्लास में मिलना है, इसीलिए धैर्य करके 12.5 विदाउट टैक्सेशन रखा, जिससे किसी का रेट ज्यादा नहीं होता है, एक्सेप्ट फॉर दैट यू नो फॉर 10% इट हैज बिकम 12.5। इंटेंशन रेवेन्यू जनरेशन नहीं, सिंप्लीफिकेशन, इससे पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ सुविधाजनक वे में सब एसेट क्लास को हम टैक्स कलेक्शन करने के लिए और एसएससी को सुविधा देने के लिए, अरे ये लिस्टेड है तो ऐसे, अनलिस्टेड है तो ऐसे, गोल्ड है तो ऐसे, लैंड है तो, वो कंफ्यूजन ना होना, सबके लिए एक ही जैसे करने के लिए ही हमने ये किया। सो इसमें कंफ्यूजन किसी का मन में नहीं होना चाहिए। इंटेंशन रेवेन्यू अगर रेस करने का था तो मैं और ज्यादा रेट डाल देते, मगर वी हैव ओनली कम विद 12.5 which is actually lower than what they paid earlier. So simplification of the process is my intent. मैम, चलते चलते ये 7वां बजट ऐतिहासिक, आपने लगातार रिकॉर्ड बनाया, 7वां बजट पेश करने का पूर्ण बजट, और आगे जाते हुए जो बजट की रूपरेखा है, इकॉनमी की रूपरेखा है, आप किस तरह से दिशा देखती हैं, और ये बजट विकसित भारत की बुनियाद रखने में कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा आपके साथ? मैं मानती हूं, जैसे राष्ट्रपति महोदया ने उनके भाषण में कहा कि ये इस बजट के द्वारा
जो आने वाले विकसित भारत के लिए फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ बजट आएगा, यही हम कोशिश किए हैं इस बजट में। और फ्यूचरिस्टिक जब मैं बोल रही हूँ, टेक्नोलॉजी को ले आना, इंडस्ट्री 4.0 के लिए हमारी यूथ को ट्रेनिंग एंड स्किलिंग देना, ये सब सिर्फ हमारे नए जॉब नहीं है इसीलिए कुछ ऐसे नहीं है। तैयार कर रही हो यूथ को, ऐसे तैयार करो कि इंडस्ट्री जॉब रेडी होंगे वो। ऐसे इसीलिए हर इश्यू में हमने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ही लिया और उसके कारण हमारे प्रायोरिटी इंडिया में क्रूज ले आया। ये कोई रिच वालों के लिए नहीं, पैसा वालों का, अमीर के लिए नहीं, उससे कितना हमारी रोजगार बढ़ेगी, इससे कितने टूरिस्ट आएंगे और उस टूरिस्ट आने के कारण हमारे हर एक केंद्र में होटल्स बनेंगे, उसमें काम करने वाले बढ़ेंगे और उसके साथ साथ टूरिज्म के साथ साथ कितने लोग का अपॉर्चुनिटीज, हैंडीक्राफ्ट सेल करना, हमारे सेंटर्स को विजिट करना, ये सब हर एक में जोड़ा एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटी को। मैं मानती हूँ इस बजट के द्वारा आने वाले बजट्स में भी होगा, मगर इसमें एक शुरुआत हमने की है कि विकसित भारत के लिए जैसे पूर्वोदय जी, उसका इतना प्रावधान देना, इतना प्रामुख्यता देना, ये सब लुकिंग टुवर्ड्स मेकिंग एवरी रीजन ऑफ दिस कंट्री राइज। बहुत बहुत धन्यवाद वित्त मंत्री जी। और आपने कहा कि जिस तरह से आप विकसित भारत की बुनियाद वाला इसे आप बजट बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज पर बात करने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। मुझे